Assalamualaikum students. After reading the lesson Robinson Crusoe, we will have its question and answers. The first question is Daniel Defoe was famous writer about the info. He was merchant, journalist, and spy, as well as a novelist and poet. He was born in 1660. Defoe worked at a number of trades before starting to write at age of 40. 40 साल की उम्र में लिखने लिखाने से पहले उसने बहुत से काम किए। उसने मर्चेंट के तौर पे भी काम किया, जर्नलिस्ट भी रहे, स्पाई भी रहे और नॉवलिस्ट के तौर पे भी काम किया और वो शायरी भी करते रहे। Information is contained in the note about the author, but pupils यानी कि students would be asked to conduct online research on concert books in the library. ये बड़ी क्लासेस के लिए है क्योंकि ये लिटरेचर से रिलेटेड है कि अगर हमें इस कहानी से पूरी तरह से नॉलेज नहीं मिलती है तो हम ऑनलाइन रिसर्च लाइब्रेरी से भी सर्च कर सकते हैं। आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। डैनियल डेफो के बारे में वहाँ आपको इसके नॉवेल्स पढ़े हुए मिलेंगे, इसकी पोइट्री के स्पेसिमेन मिलेंगे, जर्नलिस्ट के तौर पे इसके रिसर्च पेपर होंगे, मर्चेंट के तौर पे जिसने स्टोरीज राइट की हैं वो हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 2 He clambered into a boat with 3 others and rowed towards the shore. 3 अफराद के साथ उसने एक कश्ती में सफर करना शुरू किया। Then a gigantic waves sank the boat. एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने कश्ती को डुबो दिया। And he was the only one who managed to swim ashore. और 3 अफराद में से वो अकेला था जो कि अपनी जिंदगी को बचाने में कामयाब हो गया। C. Robinson Crusoe swam back to the ship to get some things. वो दोबारा तैरता हुआ बोट की तरफ गया ताकि वो शिप में से अपनी कुछ चीज़ें ले सके। He took bread, rice, cheese, stools, wood, rope, nails, snails, and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour. Students will say which item they think would have proved most useful and why. यहाँ बच्चे खुद बताएंगे कि इन चीज़ों को कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम थी कि रॉबिन्सन क्रूसो पिक कर लेता और क्यों था। Robinson Crusoe discovered that he was on an island when he walked up a little hill and looked around. From there, he could see that he was on an island. रॉबिन्सन क्रूसो ने ढूंढा एक जजीरा और वहाँ वो चलता हुआ बहुत बड़ी पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया। छोटी सी हिल सी बनी हुई थी उसके ऊपर चलता हुआ ताकि वो वहाँ से देख सके कि उसके इर्द गिर्द आइलैंड में क्या है। Some tasks that Robinson Crusoe did on the island, कुछ काम उसने उस छोटे से जजीरे पे किए और building a house, उसने एक घर बनाया with a strong stockade round it, exploring making a boat, फिर उसने जो है एक कश्ती तैयार की, learning to make boats, growing corn, बर्तन बनाए, फसल उगाई, rice and wheat उगाए and making bread और खाना बनाना भी शुरू कर दिया, राइस चावल और wheat bread. Some things he found on the island were wild grapes. उसे वहाँ पे जंगली अंगूर नजर आए and lime, लेमन भी थे, wild animals जंगली जानवर भी and goats और बकरियाँ भी, water and clay पानी भी और मट्टी भी। यहाँ पे students will give their own opinions about which proved most useful and why. कि क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है कि जब जजीरे पे आप तन्हा हों और वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ज़ाहिर बात है खुराक, लिबास और रिहाइश ये 3 चीज़ें इंसान की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को कंसीडर करना चाहिए। These were the question answers about Robinson Crusoe. Comprehension में A and B, and these are C and D and E and F. And now here is something about the learning of language. About learning the language, we will see that use of adverbs is here. Adverbs, comparative and with superlative degree. The comparative forms of verb, यहाँ हमारे पास थोड़ी सी examples हैं. Quickly,
it is adverb, and its second degree is more quickly, and the superlative third degree is most quickly. इसी तरह fortunately, more fortunately, most fortunately, hastily, more hastily, most hastily, pleasantly, more pleasantly, उससे ज़्यादा खुशगवारी के साथ, most pleasantly, सबसे ज़्यादा खुशगवारी के साथ। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हम इनको कंपेयर करते हैं सेकंड वाली में, और तीसरी वाली सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये भी हैं, इनको भी देखते हैं। इनमें मोर और मोस्ट का यूज नहीं है, इनमें ई आर और ई एस टी का यूज है। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हाई, बुलंद होना, हायर, उसकी निस्बत कंपैरेटिवली बुलंद होना। हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बुलंद होना। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। These are 3 degrees of adjective. Now we will proceed on the question. Complete the sentences using adverb. हम हमेशा जब adverb का यूज करते हैं, डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को यूज करते हैं, तो सेंटेंसेस में उनका यूज करते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों हमारे पास सेंटेंसेस में जो चीज़ इटैलिक्स में है, इटैलिक्स होती है थोड़ी सी राइटिंग में, फॉन्ट में फ़र्क होता है। जैसे ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसका झुकाव लेफ्ट साइड पे है, तो ये हमारे पास एडवर्ब्स हैं। हम इनको सेंटेंसेस को देखते हैं, आप और भी बना सकते हैं। He drove hastily, drive, drove, driven, उसने गाड़ी चलाई, hastily, तेजी के साथ। तेजी के साथ गाड़ी चलाना जो है, ये मजीद खूबी है ड्राइविंग की। तेजी के साथ चलाना खाने से रिलेटेड नहीं है, तेजी के साथ गाड़ी चलाना पेट्रोल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये ड्राइविंग से रिलेटेड है। इट मीन्स के it is verb and it is adverb. That is verb. Drove, drive, drove, driven, ये बच्चों verb है, और इसी को मजीद जो बयान कर रहा है वो adverb है। He drove hastily। अब आगे बाकी जो है, जिस तरह हमारे पास उर्दू में सेंटेंस होता है, प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, इसका जो अगला हिस्सा है मसनद और मसनद अलैह के तौर पे। अब आगे बाकी का सेंटेंस होगा, he drove hastily to the station because he was already late. She made a cake early in this morning. He speaks English fluently. अब fluently जो adverb है, ये speaks verb के साथ है। They regularly come to see us at the weekend. रेगुलरली जो लगातार है, ये एडवर्ब, ये इजाफा कर रहा है सी करने में, हमें मिलने में, कि वो हमें रेगुलरली मुलाकात करते हैं। We rarely see them drinking during the week. Rarely, कभी कभार। सी देखते हैं, सी, सा, सीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सी वर्ब के तौर पे यूज हुए हैं, रेयरली, कभी कभार, शाज़ो नादर, तो ये वर्ब और ये एडवर्ब हैं। इस तरह से हमने वर्ब, एडवर्ब, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, क्विकली, फॉर्चुनेटली, हेस्टिली, प्लेजेंटली, इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में करना है, ताकि हमें वर्ब और एडवर्ब का यूज इस्तेमाल समझ में आ सके। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।